All right, so now we're going to talk about a valediction, forbidding morning. So that's the title of the poem. Let me share the screen with you. Here we are. All right, so a valediction, forbidding morning. This poem is actually uh, is all about forbidding grief. Morning is, morning is when you are in grief or sorrow, you mourn someone's death. All right, so forbid is to stop doing that. Prohibiting mourning. So a valediction, when somebody uh, goes away or passes away, so we don't need to mourn him or her. That's the basically title of the poem. कि जब कोई चला जाता है, फेयरवेल हो जाती है, वैलिडिक्शन तो फेयरवेल को कहते हैं. So when somebody kick the bucket, मर जाता है, when a person dies, so we don't need to mourn. We don't need to express sorrow or grief. All right, ये basically title है. This poem is dedicated to John Donne's wife and more. So basically, John Donne was moving to France, and at that time, he wrote this poem to his beloved wife, in order to give her encouragement not to weep or not to mourn. Don't feel sad that he's leaving for France. So that's the basic, the context of that poem. Overall, it's all about separation, uh, or moving from or passing away from this world to another. तो ये बेसिकली आइडिया है सेपरेशन का. तो जब आप यहाँ इस दुनिया से अगली दुनिया में चले जाएंगे, तो उसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट है. एस टी कॉलरिज इस पोइम के बारे में कहते हैं कि ओनली डॉन कुड राइट सच पोइम. कहता है इस तरह की नज़में जो है ना, पोइम, लव पोइम, सिर्फ जॉन डन ही कह सकता है. इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो क्रक्स है इसका, वो यही है कि व्हेन यू सेपरेट फ्रॉम वन पर्सन एंड व्हेन यू part away, if there is a true love, that love remain true, and that person will remain faithful or loyal. If they exist, if there exists a love, true love, अगर true love exist करता है, तो separation doesn't weak the relationship. Rather than it, the separation strengthens the relationship between lovers. यानी कि मोहब्बत करने वालों के अंदर जो सेपरेशन है, जो जुदाई है, ठीक है, वो रिलेशनशिप को, लव को कमज़ोर नहीं करती है, बल्कि स्ट्रेंथन करती है. ये बेसिक आइडिया है जो जॉन डन इस पूरी पोइम के अंदर एक्सप्रेस करना चाह रहा है. ओके, सो let's read the poem. As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, while some of their sad friends do say, the breath goes now, and some say no. So let us melt and make no noise, no tear floods, nor sigh tempests move. It were profanation of our joys to tell the laity our love. Moving off the earth brings harms and fears. Men reckon what it did and meant, but repetition of the spheres, though greater far, is innocent. Dull, sublunary lovers love, whose soul is sense, cannot admit absence because it doth remove those things which alimented it. But we, by a love so much refined, that ourselves know what it is, enter assured of the mind, careless,
eyes, lips, and hands to miss. Our two souls, therefore, which are one, though I must go, endure not yet a breach, but an expression like gold to airy thinness beat. If they be two, they are two so, as stiff twin compasses are two. Thy soul, the fixed foot, makes no show to move, but doth if the other do. And though it in the centre sit, yet when the other far doth roam, it leans, the hearkens after it, and grows erect as that comes home. Such wilt thou be to me, who must, like the other foot, obliquely run. The firmness makes me circle just and makes me end where I begun. So that's the complete poem. So let's explain it line by line. So as virtuous man passes mildly away, so जो virtuous जो pious person होता है, ठीक है, that departs or leave this world mildly, gently, alright, वो आराम से इस दुनिया को छोड़ देता है, ठीक है, माइल्डली, जेंटली, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी punishment, alright, without any disturbance, किसी बगैर डिस्टर्बेंस के, नॉइज के, जेंटली the soul from the body leaves or departs. तो कोई शोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, रूह जो है वो जिस्म से जो है प्रवास कर जाती है, आसानी से, आराम से। किन लोगों की? वर्चुअस मैन की। अब नाउ दैट्स अ रिलीजियस बिलीफ एज वेल। ये मस्ट बी एक कह लें बिलीफ भी है दैट द पायस पीपल, द रिलीजियस पीपल, देयर सोल्स डिपार्ट देयर बॉडी इजीली, ऑलराइट, तो ये वो कह रहे हैं, एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, and they just ask their soul to leave, and they, and the soul of their within the body just leave the place, the body, वो अपनी सिर्फ रूह से कहते हैं कि बस जी जाने का वक्त हो गया है, तो जिस्म, इस जिस्म को छोड़ दो, ठीक है, तो रूह उनके फौरन उनका कहना मानती है और उनके जिस्म से अलग हो जाती है, उनके जिस्म को छोड़ देती है। मतलब क्या है कि दे die, they pass away पीसफुली, वो बड़े पुरस्कून पीसफुली जो है वो फोत हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, मूव कर देते हैं। while some of their sad friends do say the breath goes now and some say no, but the friends who are surrounded that person, that body, they keep on saying that they become sad, they start mourning about the death of their beloved or their friend। वो क्या कर रहे होते हैं? वो मौन कर रहे होते हैं, सैड होते हैं, ठीक है, और वो क्या कह रहे होते हैं? दैट द ब्रेथ गोज नाउ, दैट पर्सन मस्ट लिव नाउ, इसको मरना नहीं चाहिए, दैट पर्सन मस्ट लिव नाउ, ही शुड कंटिन्यू हिज लाइफ, ही शुड कंटिन्यू लिव ऑन, इसको रहना चाहिए, ठीक है। एंड सम से नो, और कुछ कहते हैं कि भाई नो, ही कैन नॉट डाई, वो मर नहीं सकता, ठीक है, डोंट लीव, नॉट डाई एट ऑल, बिल्कुल भी ना मरो, ठीक है, ना छोड़ के जाओ हमें, ठीक है। कुछ दोस्त ये कह रहे थे, कुछ कहते नहीं तो अभी तुम्हें जिंदा रहना है, तुम जिंदा रहो, कुछ कहते हैं कि तुम्हें अभी मरना नहीं है, ठीक है। सो the people around them, the friends around that person who is going to leave this world, so those friends, they are sad and they keep on saying that this that's not the right time to leave that place, to leave this world, so don't go away, don't die, and live here, you need to live, you need to continue your life। तो ये एक ऐसा ही होता है, ठीक है, नॉर्मल यही होता है कि दोस्त अहबाब रिलेटिव्स वो यही कह रहे होते हैं कि भाई अल्लाह तो आपको और ज़िंदगी दे, आप यहाँ रहो, इस तरह की बातें, ठीक है। So let us melt and make no noise. Now he's addressing to his beloved that we are mature people, we are not like that, and we don't need to make a fuss about it, ठीक है, तो कोई शोर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, विदाउट एनी फस,
ठीक है। वी नीड टू डिपार्ट, वी नीड टू पार्ट अवे, हमें एक दूसरे से लादे होने हो जाना चाहिए। ठीक है, हमें जब इतना कोई शोर नहीं करना चाहिए, कोई आहो बका नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नो टीयर फ्लड्स, ऑलराइट। सो मतलब आंसू बहाने, आंसुओं का सैलाब बहाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टीयर शेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टू मेक इट मोर, इसका जो इंटेंस करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, रोने धोने की ज़रूरत, नो साय टेम्पस्ट मूव, और ना ही आहें भर भर के उसको उसका उसका स्टॉर्म बनाने की ज़रूरत है, विंड स्टॉर्म, यानी ना ही आहें भर भर के, ठीक है, डीप ब्रेथ ले लेके इस जो हम जो मोमेंट है, इसको सोच सोच के, इससे परेशान हो के, ठीक है, एक पूरा तूफान खड़ा करने की ज़रूरत है। We don't need that. it it were profanation profanation of our joys, ठीक है। So it is against our love, ठीक है, it is insult to our love or joys or happiness। ये तो, if we do that, ठीक है, if we keep on shedding tears, and if we do sigh tempest, ठीक है, at the moment, so it will be an insult to our joys, or insult to our happiness, or insult to our relationship, or insult to our love। ये तो मोहब्बत की तोहीन होगी कि अगर इस तरह की चीज़ें अगर हम करें, टू टेल द लेटी आवर लव, ठीक है, और लोगों को बताते हैं, फिर लेटी कहते हैं जी ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, हम आम लोगों को बताते फिरे कि हमारे हमारे जो मोहब्बत है, जो हमारा जो रिलेशन है, ठीक है, व्हाट इज दैट, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डू वी हैव, ठीक है, किस किस्म का ताल्लुक है हमारा, हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं, रो के धो के और ये सारे काम करके। ठीक है, सो वी डोंट नीड टू डू दैट, लोगों को ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारे मतलब कि मॉर्निंग करके, रो धो के, आंसू बहा के हम लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं, ठीक है, दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन डू वी हैव बिटवीन अस, ठीक है, इफ़ वी डू दैट, ठीक है, व्हाट विल पीपल थिंक ऑफ अस। तो ये वो कहना चाह रहे हैं शायद। ओके, मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स। मूविंग ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक, जब जल्जला आता है तो brings harms and fears, so people uh, get harmed, or they got fearful or frightened because of the earthquake। ऐसे ही है जी, जब जल्जला आता है तो लोग, उनका नुकसान भी होता है, और they got frightened or petrified। Men reckon what it did and meant। reckon कहते हैं कंसीडर करना, काउंट करना, ठीक है, मैन reckon what it did, ठीक है, so they calculate the damages that the earthquake has done to the people, or to the people or the property, जो लोगों का नुकसान होता है और जो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, ठीक है, तो people consider count those damages, and they consider the gravity of the situation, ठीक है, तो actuality of the situation के असल में हुआ क्या है। but trepidation of the spheres, though greater far is innocent। but trepidation कहते हैं स्मॉल स्केल शेकिंग। एक होता है अर्थक्वेक जो बड़े लेवल के स्केल पे होता है, ठीक है, जिससे ज़्यादा डैमेज होता है। और ट्रेपिडेशन कहते हैं ट्रिमर्स को, यानी कि मामूली सी शेकिंग जो है, द शेकिंग द स्फीयर्स। तो ये कॉन्सेप्ट यही ना कि जब जो शेकिंग होती है वो स्फीयर्स की, और वो देयर आर डिफरेंट प्लेट्स, ठीक है, under the balls of the earth, and when they move, so they're kind of they create or generate um, a shaking situation, ठीक है, we feel that, और वो जल्जले की सारी सिचुएशन होती है, दो greater far is innocent। ओके, तो अगर अब क्या है, वो सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन इफ पीपल डोंट अवेयर ऑफ दैट, अगर इनोसेंट लोग जो हैं, ठीक है, उससे अनअवेयर हों, ठीक है,
तो वो क्या होगा, उस दिन को कोई खौफ नहीं होगा। यानी अगर जल्जला जो है, जल्जला आया है, ठीक है, और जो है ना वो, अगर उनको उसका जल्जले का पता ही नहीं है, या वो उसको कंसीडर काउंट ही नहीं करते, या उससे अवेयर नहीं, उसको दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट अर्थक्वेक, तो फिर क्या होगा, उनको कोई खौफ भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो स्टैंजा उसमें कहता है, डल सबलरी लवर्स लव। अब क्या सिचुएशन है कि जो डल सबलरी लवर्स कहते हैं ऑर्डिनरी लवर्स, ठीक है, ordinary lovers that their love based on only on physical लेवल, जिनका जिनका मोहब्बत जो है, जिनका लव सिर्फ फिजिकल जो वो होता है, ठीक है, कैन नॉट एडमिट एब्सेंस। जिन जिन जो लोग मोहब्बत करते हैं और उनका लव सिर्फ फिजिकल लेवल का होता है, दे कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, ठीक है, दे कैन नॉट बेयर एब्सेंस, दे कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर, विदाउट ईच अदर, वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है, क्योंकि उनका जो लव है वो फिजिकल होता है, बिकॉज इट डॉथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट। अब चूंकि उनका जो लव होता है वो बुनियाद होता है फिजिकलिटी के ऊपर, फिजिकल चीज़ों के ऊपर, फॉर एग्जांपल फेस के ऊपर, और राइट बॉडी के ऊपर। और जब वो फेस, वो आंखें, वो जब वो दूर हो जाता है, तो जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने लव किया था, जब वो बॉडी ही मतलब दूर हो गई, तो उनका जो लव है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो अब जो वो शायद जॉन डन कहता है कि हम जो आम लोग होते हैं ना, देयर लव इज फिजिकल लव, एंड व्हेन दे डोंट सी ईच अदर, व्हेन वन पर्सन डजंट सी हिज और हर बिलवड, सो देयर लव वैनिशेस अवे। उनका जो लव है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है। क्यों? बिकॉज देयर लव वाज ओनली बेस्ड ऑन द फिजिकल लेवल, और फिजिकल जो है ना वो लेवल के ऊपर उनका क्योंकि लव कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो जब वो फिजिकल वो अपेयरेंस नहीं होगी तो लव भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब वो चीज़ नहीं होगी जिस पे से लव था, तो वो लव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो कहता है, बट वी बाय लव सो मच रिफाइंड, बट आर लव इज सो मच स्पिरिचुअल, ठीक है। हमारा जो आवर लव, आवर रिलेशनशिप इज प्योरीफाइड, ठीक है, वो तो बड़ा प्योर है, वो बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। दैट आर सेल्फ नो नॉट वट इट इज, ठीक है। तो हम अब हमें भी नहीं पता कि ये किस किस्म का रिलेशन है, इट इज़ अ मिस्ट्री फॉर अस, ठीक है। वी हैव एनिग्मेटिक रिलेशनशिप। हमारा जो रिलेशन है, जो प्योरिफिकेशन, जो सोल का रिलेशनशिप है, जो रूह का ताल्लुक है, जो रूह का रिलेशन है, जो स्पिरिचुअल है, इसकी जो एक्चुअलिटी है, जो इसकी कह लें कि एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन है, या एग्जैक्ट इंटेंसिटी है, या एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन है, ये तो हम भी नहीं कर पाए, इसको अभी तक हम भी नहीं समझ पाए। इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, ये जो है ना वो सिमुलेशन ऑफ माइंड है, ये दिमाग का आपस का मिलना है, ठीक है। यानी जो हमारा लव है, ठीक है, ये श्योरिटी ऑफ माइंड है। यानी हमारे दिमाग, हमारे जो आइडियाज़ हैं, वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। हमारा जो प्यार है वो, हमारा जो लव है वो सबलरी लवर्स के मुताबिक उनकी तरह नहीं है, फिजिकल लेवल का नहीं है, माइंड लेवल का है। सो वी डोंट केयर अबाउट आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, ठीक है। अब हमारा चूंकि लव जो है वो स्पिरिचुअल है, तो अगर हम एक दूसरे के पास नहीं भी होंगे, आवर लव रिमेन इंटैक्ट, अब हमारी मोहब्बत कायम रहेगी, हमारा लव, हमारा रिलेशनशिप कायम रहेगा, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो सोल का रिलेशनशिप है, वो स्पिरिचुअल है, ठीक है। सो स्पिरिचुअल लव, रिफाइंड लव डजंट नीड आईज लिप्स एंड हैंड्स, ठीक है, टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, टू कंटिन्यू द लव रिलेशनशिप। तो कहता है हमारा रिलेशनशिप इंटैक्ट रहना चाहिए, तो फिर रोने की क्या बात है? सो वाई डू वी नीड टू मोर्न, मतलब मॉर्निंग की क्या बात है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सेपरेशन है वो तो स्पिरिचुअल है,
Our separation will enhance our relationship, will strengthen our relationship. हमारे जो जुदाई है या ये जो वक्ती फॉर द टाइम बिंग जब एक दूसरे से जुदा होना है, ये तो हमारा रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि हमारा रूह का रिश्ता है. Our two souls therefore which are one. ठीक है. Although we are two, but our souls they are assimilated into one. हम दो रूहें हैं लेकिन वो एक हो चुकी हैं. हमारा जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो एक हो चुका है. वो जो है फ्यूज्ड इनटू वन. दैट फ्यूज्ड गॉट फ्यूज्ड इनटू वन. वो एक बन चुकी है रूह. दो आई मस्ट गो इन योर नोट येट अ ब्रीच. अगर मैं फिजिकली चला भी जाऊं, ठीक है, लेकिन मेरी रूह तो इंटैक्ट है ना. मेरा जो रिलेशनशिप है, जो रूह का रिलेशनशिप है, दैट इज इंटैक्ट. देन what will happen, we don't see or we don't have any breach in our relationship. So there will be no void or a gulf in our relationship, because our relationship is based on souls, and our souls are intact, they are fused to one. So there will be no problem at all. हमारा जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो तो रूह का है. और रूह भी, दो रूहें भी एक हो चुकी हैं, और उसमें कोई रप्चर नहीं है, कोई ब्रीच नहीं आएगा. ठीक है. क्यों नहीं आएगा, क्यों उसमें रप्चर नहीं आएगा? क्योंकि वो रूह तो एक है. ठीक है. बट एन एक्सप्रेशन लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस, थिननेस बीट. और वो कहता है कि जैसे जो गोल्ड होता है ना, सोना होता है, ठीक है. तो वो जो सोना जब रॉ फॉर्म में होता है, तो व्हेन वी बीट दैट गोल्ड, सो वी मेक डिफरेंट लीफ. ठीक है. तो जब वो लीफ बन भी जाते हैं ना, उनकी बीटिंग जो है डजेंट हार्म द क्वालिटी ऑफ गोल्ड. यानी जो गोल्ड है, जो रॉ गोल्ड होता है, अगर हम उसको कूट के बीट करके उसको डिफरेंट शेप्स में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जो डिफरेंट शेप लीव्स बनती हैं, तो वो भी गोल्ड ही होता है. ठीक है. तो अगर हम भी, हमारा रिलेशन भी ऐसे ही है, सोने की तरह है. हमारा रिलेशन एक पार्ट्स ऑफ प्योर रिलेशन, सोल का रिलेशनशिप है. और अगर सेपरेशन हो भी जाएगी, तो वो रूह जो है वो इंटैक्ट रहेगी, वो लव इंटैक्ट रहेगा. वो लव, वो क्वालिटी जो है लव की, वो कायम रहेगी, वो ख़त्म नहीं हो जाएगी. जिस तरह सोना, उसको अगर हम बीट भी कर लें, डिफरेंट उसके उसको शेप्स में कन्वर्ट भी कर दें, तो जो उसकी क्वालिटी है वो इंटैक्ट रहती है. और क्या होता है, सम टाइम व्हेन यू बीट द गोल्ड, वो क्या होता है, बीटिंग इन्हांसेस द क्वालिटी ऑफ गोल्ड एज वेल. जब आप उसको, एक रॉ है और एक आप उसको बीट किया, उसको ज़रा अच्छी शेप में ले आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी आप उसको आपने और वर्स फाइल बना दिया, उसको वाइडर कर दिया है. ठीक है. तो इसका मतलब है, जो जो सेपरेशन है ना, जो ये जो वक्त, जो फॉर द टाइमिंग, ये जो प्रॉब्लम सेपरेशन आ रही है, इट विल इट विल इन्हांस आवर रिलेशनशिप, इट विल इन्हांस द इंटेंसिटी ऑफ आवर ट्रू लव. ये जो मोहब्बत की जो शिद्दत है, जी, सच्ची मोहब्बत जो शिद्दत है, इसको इन्हांस करेगी, बढ़ाएगी, इसको वैल्यूएबल बनाएगी. ऑलराइट. उसके बाद आपका क्या कहता है जी ना. यहाँ पे मेटाफिजिकल कंसीट इस्तेमाल करने लगा है जॉन डन. ठीक है. मेटाफिजिकल कंसीट इज दैट fanciful supposition. ठीक है. कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट आइडियाज. ठीक है. दे यॉक टुगेदर. यही हमने पढ़ा था ना मेटाफिजिकल कंसीट के अंदर, कि जब मुख्तलिफ आइडियाज़ को, ठीक है, फार-फेच्ड आइडियाज़ को हम uh, उनको इकट्ठा करते हैं ज़बरदस्ती. ठीक है. तो यहाँ पे भी अब वो क्या करेगा, कंपास की एग्जांपल देने लगा है. ठीक है. सो मैथमेटिक्स से एक आइडिया लेके उसको अब लव के साथ देखें कैसे, और लवर्स के साथ कैसे कंपेयर करता है. इफ दे बी टू, if they be two, they are two, so as stiff twin compasses are two. So if they be two, they are two, so
जब when जो lovers होते हैं they are two, so they are they seem separate. जो दो महबूब हैं उसकी एग्जांपल को अब वो ले रहा है, इज कंपेयरिंग द लवर विद कंपस, कंपस के साथ, कंपास के साथ, कंपस के साथ कंपेयर कर, जैसे एक्सक्यूज मी, जब उसकी कंपस की दो जो आर्क होती हैं, जो दो लेग्स होती हैं, सेम इज द केस विद कपल्स, ओके, विद लवर्स, वो भी दो होते हैं, द सोल द फिक्स फुट मेक्स नो शो टू मूव बट डोथ इफ द अदर डू। अब उनकी क्या होती हैं, दे आर टू, ठीक है, लेकिन उनकी जो दो रूह होती है, बट दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर। कंपस अगर आपने देखी हो तो दे आर टू लेग्स और टू आर्क्स, बट दे आर कनेक्टेड विद वन पॉइंट। दे आर टू, फिजिकली दे आर टू, बट दे आर कनेक्टेड विद वन पॉइंट, ऑन वन पॉइंट, एंड दैट इज द सोल। ठीक है, वो रूह है, चाहे वो दो है लोग हैं लेकिन वो एक ही पॉइंट के ऊपर आके कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो रूह के एतबार से एक ही है, फिजिकली वो दो है। ठीक है, व्हेन वन मूव द अदर आल्सो डू, जब अगर एक मूव करती दूसरी मूव करती है, तो उनका जो रिलेशनशिप है, उनका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो हैंड इन हैंड चलता है। ठीक है, यानी कि एक चलेगा तो दूसरा भी चलेगा। ठीक है, एक रुकेगा तो दूसरा भी रुकेगा, और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखें, ये कंपस को उसने क्या किया हुआ है, लव के साथ और कपल के साथ जक्सटापोज किया हुआ है। सो लॉजिक और लव जो है उसको उसने, इट्स अ काइंड ऑफ अ जक्सटापोजिशन ऑफ लॉजिक एंड लव। लॉजिक, ये लॉजिक इन कंपस, ठीक है, और ये द वे ही इज कंपेयरिंग लव विद द कंपस, तो ये लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा है। तो लॉजिक और लव का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे, एज दो इट इज इन द सेंटर सेट। Yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it, and goes erect as that comes home. अब वो बात कर रहे हैं, दो इट इज इन द सेंटर सेट। अब जो एक आर्क होती है, एक लेग होती है कंपस की, ठीक है, डेट रिमेन इंटैक्ट इन द सेंटर, वो सेंटर में जो है ना वो इंटैक्ट रहती है। when the other far doth roam, and if the other leg start roaming about, ठीक है, गोइंग अवे, ठीक है, और स्लंटिंग, तो क्या होता है जी, रोटेटिंग और रोमिंग, तो इट लीन्स, तो जो दूसरी होती है, ठीक है, वो उसके साथ कनेक्टेड होती है, एंड हार्कन्स आफ्टर इट, और वो उसी के मुताबिक चलती है। यानी जब जैसे हम कंपस को घुमाते हैं ना, ठीक है, एक घूमेगी तो दूसरी भी घूमेगी, अगर एक मूव करेगी तो दूसरी उसको सुनेगी, वो भी उसके साथ जो है वो एक्ट करेगी। और जब आप उसको पूरे को घुमा देंगे एक दफ़ा, ठीक है, तो दोबारा जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके वो रुक जाएगी, वो वापस जो है वो अपने घर पे ही रुकेगी। मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वहाँ से वो शुरू हुई थी, और आफ्टर कंप्लीटिंग दी सर्कल, ठीक है, इट एंड्स वेयर इट बिगिंस, जहाँ पे वो शुरू हुई थी वहाँ पे वो ख़त्म हो गई। सो बेसिकली कह रहा है कि वी आर लाइक टू feet of the compass meeting together at the center of love। यानी हम एक कंपस की तरह हैं, ठीक है, कंपस के दो लेग्स आर्क की तरह हैं, ठीक है, एंड वी आर एक्चुअली अचीविंग द सर्कल ऑफ लव और सर्कल ऑफ लाइफ। ठीक है, और हम मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुगेदर, वी आर मीटिंग टुगेदर एट द सेंटर ऑफ लव। और हमारा जो सेंटर है वो लव है, हमारा जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन की फाउंडेशन है, वो क्या है, वो लव है। उसके बाद वो कहता है, सच विल्ट दाउ बी टू मी हु मस्ट लाइक द अदर फुट। तो कहता है कि सेम इज द केस विद यू, ठीक है, यू आर द सेंटर फॉर मी। ठीक है, अपने बिलवड से कह रहा है, यू आर द सेंटर, यू शुड बी इन द सेंटर, आवर रिलेशनशिप इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यू मस्ट बी द सेंटर। obliquely run the firm, thy firmness makes my circle just।
ठीक है, एंड इफ आई रोटेट माई सेल्फ, if you are firm, if you are stationary, if you are at the center and you are holding yourself firmly, then I will be able to make the circle complete. और अगर सेंटर जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, यानी तुम स्ट्रांग अपने बिलवड से कह रहा है कि अगर तुम सेंटर पे इंटैक्ट रहोगी, ठीक है, आप फिक्स रहोगी, अपने फीट को फिक्स रखोगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, I will be able to complete this circle, circle of life, circle of love, ठीक है, that we are completing together. वो जो सर्कल है जो लव का, ठीक है, वो जो लाइफ का जो सर्कल है जो हम दोनों मिलके पूरा कर रहे हैं, तो तभी मुमकिन होगा if you will remain firm, alright, if you remain passionate about the love and makes me end where I began, ठीक है, then I will be able to complete what we have started earlier. तो हम वही तभी अपने इस रिलेशन को, अपने मामलात को मुकम्मल कर सकेंगे, ठीक है, अगर तुम मेरा कोऑपरेट करोगी, तो अगर सेंटर इंटैक्ट रहेगा. सो बेसिकली बिकॉज इज मूविंग टू फ्रांस, तो वो यही कह रहा है कि ऑल दो आई एम गोइंग अवे, I am the second leg of the compass. I'm going away. But if you remain still and firm, ठीक है, if you remain loyal to me, then our relationship will exist. मतलब अगर तुम मेरे जाने के बाद भी लॉयल रहोगी, फर्म रहोगी, ठीक है, इंटैक्ट रहोगी, हमारा जो सोल का जो लव का जो रिलेशनशिप है उसके अंदर, ठीक है, तो मैं अपना जर्नी कंप्लीट करने के बाद आई विल रिटर्न, ठीक है, आई विल रिटर्न टू यू, ठीक है, देन वी कंप्लीट द सर्कल ऑफ लाइफ और सर्कल ऑफ लव, ठीक है. सो वन पर्सन remains at the center and the other person goes away, but still connected with the center, with the center because of the loyalty and the love of the souls, ठीक है. और राइट, तो वो बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि अगर तुम फिक्स फर्म रहोगी और मैं जो है वो वक्त कुछ गुजारने के बाद जो है वो हमारा चूंकि सोल का रिश्ता है, हम लव से कनेक्टेड है, तो हम सर्कल जो लाइफ है उसको कंप्लीट कर लेंगे. ओके, इसके मतलब इस पोइम के मतलब एस टी कॉलरिज जो है वो एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि नथिंग वाज एवर मोर एडमायरेबली मेड देन द फिगर ऑफ कंपस. कहता है कि यार ये जो कंपस का और लवर का आपस में जो कंपैरिजन है ना, ठीक है, जितनी खूबसूरती से ये एक्सप्रेस किया गया है, ये कहीं पहले इस तरह की काबिल तारीफ चीज़ कभी किसी ने नहीं की है, ठीक है, इससे पहले कभी किसी ने ऐसा ऐसा ख्याल, ऐसा जो एक कॉन्सेप्ट है वो किसी ने नहीं दिया. ये एस सी कॉलरिज का फरमान है. Okay, but on the contrary, Dr. Johnson has very diverse view about it, the very adverse view. He says the conceit of compass is absurd and unnatural. कहता है कि ये क्या इसने किया है, कंपास की कोई मिसाल थी देने वाली. बहरहाल ये डॉक्टर जॉनसन की अपने एक व्यू है और एस सी कॉलेज का भी अपना एक व्यू है, और चीज़ों को, शायरी को देखने का अपना एक एंगल है, एक नुक्ता नज़र है, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म जनरेट होता है. तो एस टी कॉलेज जो है वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से देख रहा है इस शायरी को, तो उसने एक डिफरेंट कमेंट किया है. और जो डॉक्टर जॉनसन है वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ एंगल से, फ्रेम ऑफ माइंड से शायरी को देख रहा है जॉन डन की, तो इसलिए उसने उसको डिफरेंट एंगल से क्रिटिक की है उसकी, ठीक है. सो ये है जी बेसिकली फॉरबिडिंग मॉर्निंग. तो बेसिकली जो स्पिरिचुअल लव है उसकी इम्पोर्टेंस को उसने हाईलाइट किया है, जो रूह का, जो सोल का जो कनेक्शन है उसको उसने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ, विद एन एग्जांपल ऑफ कंपास. ऑलराइट, so that's all about forbidding a valediction, forbidding mourning.